Hi guys, my name is Sagar Taneja and welcome to my channel T-Shape Marketing. Guys, this video is not about how to make an account on LinkedIn because you can Google it. This video is about how you can grow on LinkedIn if you are a beginner or if you don't know where to start. Before starting this video, I'm gonna tell you one important thing is that LinkedIn is the best professional social media platform if you want to make your career. Don't you think this is a powerful statement? Yes, it is. Because I am telling you out of my experience, if you show your consistency in this platform, you will start seeing results very, very soon. So I have made a PPT for you to make you understand better कि how to start your journey if you are a beginner or if you don't know where to start. So let's go with the PPT. So guys, here's the PPT. And guys, before starting, I want to tell you LinkedIn is not just for finding jobs because most people think LinkedIn is just for jobs. No, LinkedIn is for making your whole career. You can earn money from LinkedIn. I'm feeling bad for myself because I made this account in 2017, but I never think to do something on this platform because right now most of the people are thinking in that way only, like I was thinking in 2017. From past 3 weeks I'm continuously working on this platform and the results are mind blowing, guys. In 3 weeks 100 people viewed my profile. Daily I get 5 to 6 requests on LinkedIn. I started talking to people. I have made good connections and very very soon I will start earning on LinkedIn. And let's start, guys. Before that you need to know what's not इन दिस पीपीटी। तो ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको गूगल और यूट्यूब पे मिल जाएंगी, इस वीडियो में आपको नहीं मिलेगी। अगर आप सोच रहे हो कि एज अ बिगनर आपको ये पता होना चाहिए, ये नहीं है फर्स्ट स्टेप लिंक्डइन पे आने के लिए। ये ऐसे स्टेप हैं जो आप गूगल पे इजीली देख सकते हो। मैं आपको जो स्टेप बताने वाला हूँ वो एक ऐसा स्टेप है जो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा फायदा देगा। शॉर्ट टर्म में तो देगा ही देगा, लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा फायदा देगा। लिंक्डइन इज दिस जो आपको मैं अभी बताने वाला हूँ। सो व्हाट्स दिस वीडियो फॉर? ये वीडियो किसके लिए है? टू फाइंड योर ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट ऑडियंस ऑन लिंक्डइन। यस, डोंट यू थिंक दिस शुड बी द फर्स्ट थिंग यू नीड टू फिगर आउट? अगर आप लिंक्डइन पे आ रहे हो, लिंक्डइन इज अ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म, तो डोंट यू थिंक कि आपको पहली चीज़ लिंक्डइन पे आने से पहले ये सोचना चाहिए कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है लिंक्डइन पे आने का और आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है? I guess this should be the first thing you should do before starting your journey on LinkedIn, because you can't find your dream job if you don't know your objective and target audience on LinkedIn. You can't find any leads if you don't know your objective and target audience on LinkedIn. You can't make money if you don't know your objective and target audience on LinkedIn. Guys, आपको ये पहले से पता होना चाहिए कि आपका ऑब्जेक्टिव और टारगेट ऑडियंस क्या है लिंक्डइन पे आने का। अगर आपको ये नहीं पता स्टार्टिंग में तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा लिंक्डइन पे यही पता करने में कि आपको टारगेट किसको करना है और आपका ऑब्जेक्टिव क्या है लिंक्डइन पे आने का। अगर आपका जॉब भी है तो जॉब में भी बहुत चीज़ें आपको पहले पता होनी चाहिए। तो ये आपको मैं इस पीपीटी में आपको यही बताने वाला हूँ कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए और आपके टारगेट ऑडियंस क्या होनी चाहिए लिंक्डइन पे। बिकॉज लिंक्डइन पर साइन अप करके प्रोफाइल क्रिएट करना तो इज़ वेरी इजी। उसके बाद क्या करोगे, वही तो सबसे मेन स्टेप है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है और टारगेट ऑडियंस क्या है। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज। द 3 main objectives टू कम ऑन लिंक्डइन कुड बी, इट डिपेंड्स ऑन योर एज गाइस। मैंने ये जो पीपीटी बनाई है वो एज के हिसाब से बनाई है बिकॉज टुडे आज के टाइम पे 18 ईयर्स 17 ईयर्स 16 ईयर्स के स्टूडेंट से लेकर 60 ईयर्स तक 65 ईयर्स तक बंदे लिंक्डइन पे हैं। मतलब इतनी छोटी एज से इतने हाई लेवल तक के। तो अगर आपकी एज 18 से 20 ईयर्स है तो आपके पास एक्सपीरियंस तो है नहीं। आप मे बी आप कॉलेज में ही होगे, तो या तो आप इंटर्नशिप ढूंढ रहे होगे या अपनी फर्स्ट जॉब ढूंढ रहे होगे, यही दो है आपकी रीजंस। इसके अलावा तो कुछ नहीं है। नहीं तो आप 18-20 ईयर्स में अपना
पर्सनल ब्रांडिंग तो नहीं कर रहे हो, आपको फर्स्ट जॉब तो चाहिए ही ना, एक इंटर्नशिप तो चाहिए ना, एक एज तो चाहिए स्टार्ट करने के लिए। तो अगर आपकी एज 18 से 28 है, आपका जो ऑब्जेक्टिव है या तो इंटर्नशिप होगा या जॉब होगा। अगर आपकी एज 21 से 25 ईयर्स है, आपका ऑब्जेक्टिव होगा गुड जॉब या फ्रीलांसिंग, राइट? बिकॉज ऑब्जेक्टिव कैसे पता चलेगा? आपकी एज के हिसाब से तो पता चल सकता है। अगर आप 18 से 20 ईयर्स हो तो आपकी ऑब्जेक्टिव इंटर्नशिप या जॉब हो सकती है। अगर आप 21 से 25 ईयर्स को, आपका ऑब्जेक्टिव गुड जॉब हो सकती है। गुड जॉब मीन्स आपके पास 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, और अगर आपको एक गुड जॉब चाहिए तो लिंक्डइन इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। ये आपको फ्रीलांसिंग करनी है। ये अगर आपकी एज 26 से 30 ईयर्स है तो आपका मे बी ऑब्जेक्टिव हो सकता है पर्सनल ब्रांडिंग या लीड जनरेशन, राइट? सो ये 3 चीज़ें हैं, मैंने आपको नीचे कंक्लूजन भी दिया है। लिंक्डइन इज ऑल अबाउट पर्सनल ब्रांडिंग इफ यू वांट टू डू, लीड जनरेशन इफ यू वांट टू डू, और फाइंडिंग जॉब्स। ये 3 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है लिंक्डइन पे, अगर आपको लिंक्डइन पे स्टार्ट करना है तो। बिकॉज इन 3 ऑब्जेक्टिव्स के अलावा कोई फोर्थ ऑब्जेक्टिव आई डोंट नो है लिंक्डइन पे आने का। क्योंकि लिंक्डइन इज ऑल अबाउट हैविंग good connections to generate leads, having good connection to improve your personal brand, having good connection to get a job. These 3 are the main objectives you should have, right? So next thing, now what is your target audience? ठीक है, आपको अपना ऑब्जेक्टिव पता चल गया। आपको अपना ऑब्जेक्टिव पता चल गया कि आपको इंटर्नशिप ढूंढनी है, आपको या तो फ्रीलांसिंग करनी है, आपको पर्सनल ब्रांड बनाना है, या आपको लीड जनरेशन करनी है फॉर बिजनेस टू बिजनेस और फॉर बिजनेस टू कस्टमर, B2B और B2C, इट्स अप टू यू। सो व्हाट इज योर टारगेट ऑडियंस? सो लेट्स से इफ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, हु कुड योर टारगेट ऑडियंस क्या होनी चाहिए? अगर आपका जो ऑब्जेक्टिव है लिंक्डइन पे आने का जॉब है, तो वो डिपेंड करता है कि व्हाट यू आर करंटली डूइंग, in which company you are looking for, or dream company, or who could get your job। ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आपकी करंट आप क्या कर रहे हो, कौन सी कंपनी पे आप जाना चाहते हो, और आपको कौन जॉब दिलवा सकता है लिंक्डइन पे। लिंक्डइन पे मैंने खुद पर्सनली, मेरे को एक कंपनी में जाना था इंटरव्यू के लिए, मुझे पता नहीं था कि कैसे करूँ, तो मैंने उस कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको सर्च करा लिंक्डइन पे, उनसे बात करी और उनको कहा कि कैन यू कनेक्ट मी विद योर HR। उन्होंने मुझे उनकी HR से कनेक्ट कराया, मेरा इंटरव्यू शेड्यूल कराया थ्रू लिंक्डइन। So this is the best way you can do। either you should मतलब आपको पहले से पता होनी चाहिए आपकी ड्रीम कंपनी क्या। अगर नहीं पता तो आप लोकेशन वाइज सर्च करो, और अगर आपको पता है कि आपको इसी कंपनी में जाना है तो आप उस कंपनी में जितने भी लोग जो हैं इस टाइम पे या HRs हैं उनसे बात करो कि भाई मेरे को शेड्यूल कराना है, तो आपका इंटरव्यू शेड्यूल इजीली हो जाएगा। So this is the thing, if you are looking for a job, this should be your target audience, and if your objective is to finding a job। नेक्स्ट, सो लेट्स से इफ यू वांट टू जनरेट लीड्स, हु वुड यू टारगेट? अगर आपको लीड जनरेट करनी है फॉर योर बिजनेस, और इफ यू आर अ फ्रीलांसर ऑल्सो, अगर आपको लीड जनरेट करनी है तो आपको ये 3 चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए कि हु डू यू हेल्प, व्हाट डू यू हेल्प देम अचीव, हाउ डू यू डू दैट। हु डू यू हेल्प मीन्स, आप सपोज करो आप एक डिजिटल मार्केटर हो, तो हु डू यू हेल्प, आप किसकी हेल्प करते हो? सपोज यू आर हेल्पिंग स्टार्टअप्स, तो आपको पता होगा कि आई ओनली हेल्प स्टार्टअप्स, तो आपको ये पता चल गया। आगे क्या है, व्हाट डू यू हेल्प देम अचीव, आप उनको क्या अचीव करते हो? सपोज यू आर हेल्पिंग देम टू इंक्रीज द ऑर्गेनिक रीच ऑन गूगल। सो आपका मोटिव क्या होगा, उनको अचीव कराओगे ऑर्गेनिक रीच ऑन गूगल। और कराओगे कैसे? हाउ डू यू डू दैट? बाय SEO या सोशल मीडिया मार्केटिंग या गूगल एड्स। ये 3 तरीके हो गए। तो आपको ये 3 चीज़ें अपने दिमाग में अच्छे से पता होनी चाहिए, ताकि आप जब अपनी प्रोफाइल बनाओ तो आप यही चीज़ें अपनी प्रोफाइल में डालो कि आई एम अ डिजिटल मार्केटर who help startups to grow their organic reach via Google Ads or Facebook Ads। This is the statement you need to figure out कि आप क्या हेल्प कर सकते हो, आप कैसे हेल्प कर सकते हो, और आप किसकी हेल्प कर सकते हो। आपको अगर ये 3 चीज़ें अपने दिमाग में क्लियर होंगी तो आप लीड जनरेशन आराम से कर सकते हो लिंक्डइन पे। बिकॉज दिस इज द फर्स्ट स्टेप गाइस। अगर आपको यही नहीं पता कि आप लिंक्डइन पे लीड जनरेट करोगे कैसे, आपको खुद का ही नहीं पता किसको ऑडियंस बनाओगे, दिस इज योर टारगेट ऑडियंस। कि आप स्टार्टअप्स को अपने टारगेट ऑडियंस बना रहे हो। कैसे बना रहे हो? कि मैं स्टार्टअप्स को
ऑर्गेनिक रीच में हेल्प करता हूँ फेसबुक एड से। तो ये आपका एक नीश स्पेसिफिक प्रोफाइल होगी। अगर आप अपनी प्रोफाइल नीश स्पेसिफिक बनाओगे तो आपके चांसेस लीड जनरेट करने के बड़े ज़्यादा हाई हैं। यस, सो दिस इज इट एंड द लास्ट वन इज, लेट्स से इफ यू वांट टू मेक अ पर्सनल ब्रांड, हु वुड यू टारगेट? अगर आपको अपना खुद का पर्सनल ब्रांड बनाना है, कि अगर आपकी कोई वेबसाइट है या आप बहुत टाइम से कुछ कर रहे हो और आपको दिखाना है कि दिस इज माई पर्सनल ब्रांड, ताकि लोग आपके पास खुद आए, तो आपको क्या पता होना चाहिए पहले कि हु आर यू, वट यू डू एंड हु कुड बेनिफिट फ्रॉम यू, कि आप क्या हो, आप क्या करते हो और आपसे कौन, आप किसको बेनिफिट दे सकते हो। सपोज यू आर अ software engineer, okay, you are a software engineer and you help tech companies in software making, तो आपका ये एक नीश हो गया। और आपने यही मतलब आपको ये पता चल गया कि मेरा पर्सनल ब्रांड है कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं खुद का ही काम करता हूँ, और जितने भी टेक कंपनीज है या टेक बिजनेस वाले हैं वो मेरे से हेल्प ले सकते हैं, आपको ये पता चल गया। तो अगर कोई लोग सर्च कर रहा होगा कि मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए, अगर वो लिंक्डइन पे सर्च करेगा और आपके प्रोफाइल शो होगी, तो आपको आपका पर्सनल ब्रांड खुद ही जनरेट हो जाएगा। अगर आप डेली पोस्ट डालोगे अपने ब्रांड के बारे में, अपने ब्रांड के बारे में बताओगे, ये मैं करता हूँ, मुझे ये नॉलेज है, इन सब की चीज़ों की नॉलेज है, दिस इज माई पर्सनल ब्रांड, तो आपको खुद इनबाउंड कॉल्स आएंगे, आपको आउटबाउंड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यू शुड नो योर ऑडियंस। आपकी ऑडियंस कैसे पता चलेगी कि हु आर यू, वट यू डू एंड हु कुड बेनिफिट फ्रॉम यू? अगर आपको ये तीन चीज़ें अपने दिमाग में पता है तो ऑडियंस आपके पास खुद आएगी, बिकॉज यू आर मेकिंग योर ओन पर्सनल ब्रांड। दैट्स इट। सो लेट्स टॉक अबाउट द टेक अवेज। क्या है? यही टेक अवेज हैं गाइस, कि डोंट sign up your channel or don't start your LinkedIn channel unless and until you find your objective and you find your target audience, because यही दो मेन चीज़ हैं। फर्स्ट स्टेप है LinkedIn पे आने का। अगर आपको ये पता, जैसे मैं अपना बताता हूँ मेरा ऑब्जेक्टिव और टारगेट ऑडियंस क्या है, मैं आपको अपनी प्रोफाइल दिखाता हूँ, आपको और इजी हो जाएगा स्टार्ट। मतलब एग्जाम्पल के वजह से आपको मैं बताता हूँ कि व्हाट इज माय ऑब्जेक्टिव एंड व्हाट इज माय टारगेट ऑडियंस। आई एम एन एसईओ एग्जीक्यूटिव, सो दिस इज, लेट्स सी। गाइस देखो आप, मैंने अपने बैनर पे, लिंक्डइन बैनर पे क्या लिख रखा है? हेल्पिंग स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस विद ऑर्गेनिक रीच एंड ग्रोथ। आप समझ रहे हो इसका क्या मतलब है? कि दिस इज़ फॉर माई पर्सनल ब्रांडिंग। मैं लिंक्डइन पे क्यों, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? पर्सनल ब्रांडिंग का। और हु एम आई, मैंने अपने टाइटल में बता रखा है कि आई एम एन एसईओ स्पेशलिस्ट एंड एसईओ रिच कंटेंट राइटर एंड व्हाट हु कुड बेनिफिट यू, हु कुड बेनिफिट फ्रॉम मी, स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस फॉर ऑर्गेनिक रीच एंड ग्रोथ। ये है मेरा नीश, कि अगर कोई मेरे उस पर आता है तो उसको साफ साफ पता चल रहा है कि भाई ये एसईओ स्पेशलिस्ट है, ही इज़ ऑल्सो एसईओ कंटेंट राइटर, और ये स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस को हेल्प करता है ऑर्गेनिक रीच एंड ग्रोथ में। यस, दिस इज इट, दिस व्हाट यू शुड नो बिफोर स्टार्टिंग लिंक्डइन। बिकॉज अगर आपको ये पता होगा कि आपके टारगेट ऑडियंस क्या है और क्या ऑब्जेक्टिव है, तो आप इजीली स्टार्ट कर पाओगे। यस, एंड गाइज आई एम ऑन दिस प्लेटफॉर्म, मतलब मैं इस प्लेटफॉर्म पर सिर्फ 3 वीक से हूँ। मैं 3 वीक से इसको कंसिस्टेंटली वर्क कर रहा हूँ इस चीज़ पे। मेरा अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि मेरे प्रोफाइल पे लोग कितना व्यू है, मेरे प्रोफाइल ये देखो, 100 हु व्यूड माई प्रोफाइल। आप ये ग्राफ देख रहे हो? इससे पहले ये देखो, मई 2017, मई 31, ये सारा जितना भी था ज़ीरो था। जब से मैंने थोड़ा स्टार्ट करा है जून, ये देखो दिख रहा है आपको, ये प्रोफाइल व्यूज़ इंक्रीज हुए हैं। कैसे? बिकॉज मैंने स्टार्ट करा है ऐसे, मतलब मैंने डेली के पोस्ट डाले। मैं आपको अपनी पोस्ट दिखाता हूँ। ये देखो, 9 hours अगो, 2 days अगो, 3 days अगो, 4 days ago, 6 days ago, 1 week ago, 2 weeks ago, 3 weeks ago, 3 weeks ago। गाइज यही करा है मैंने, और मेरे अभी तक सिर्फ
300 फॉलोवर्स हैं, मेरे कनेक्शंस सिर्फ 299 कनेक्शंस हैं, इससे ज़्यादा मेरे कनेक्शंस भी नहीं है। सो आप देख सकते हो कि अभी मैंने जस्ट स्टार्ट करा है एंड मेरे को 100 से ज़्यादा व्यूज़ मिल रहे हैं। मेरी मेरी अब अगर मैं आपको वो दिखाता हूँ कि मेरे पास कितने कनेक्शंस हैं, मतलब कितनी रिक्वेस्ट आई हुई हैं, आपको मैं ये भी दिखाता हूँ। वेट, मेरे को डेली की 5-6 रिक्वेस्ट अपने आप आ जाती हैं। मैं नेटवर्क पे जाता हूँ, सी वेट, यस, शो मोर, ये मेरी पेंडिंग रिक्वेस्ट है 1 2 3 4 5 6, ये आज और कल में ही आई हैं 6 रिक्वेस्ट। मेरे को डेली की 5-6 रिक्वेस्ट आती ही हैं बिकॉज मैं अपनी ऑर्गेनिक रीच बढ़ा रहा हूँ और लिंक्डइन पे ऑर्गेनिक रीच बहुत बहुत अच्छे से बढ़ती है। लिंक्डइन ऑर्गेनिक रीच के लिए बहुत अच्छा है अगर आपको अपनी ऑर्गेनिक रीच करनी है। सो गाइज, दिस इज इट, दिस वीडियो इज टू नो अंडरस्टैंड यू कि आपको लिंक्डइन पे फर्स्ट स्टेप क्या करना है। आपको पहले अपनी टारगेट ऑडियंस ढूंढनी है एंड अपना ऑब्जेक्टिव ढूंढना है, तभी स्टार्ट करना लिंक्डइन पे। यस, दैट्स इट एंड